So let me revise in short whatever we have studied in the earlier class. So given a topological space, we will say that it is connected. It is connected if and only if the only subsets of X that are both open and closed in X are the empty set and the full set itself. Or to show that if a space is not connected, then construct at least one open set, one non-empty non-empty proper subset of X. Non-empty proper subset of X means neither U is equal to phi, neither U equal to X, which is open as well as closed. So these two definitions are basically equivalent. ठीक है ना, तो वो लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि इक्विवेलेंट है. सेकंड डेफिनेशन इज आल्सो इन टर्म्स ऑफ लिमिट पॉइंट. And if there is a subspace of X, I mean subset of X equivalent to subspace topology, then we need to check whether Y is connected or not with respect to its subspace topology. ठीक है ना, तो एक ये लिमिट वाला अप्रोच हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और इसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखा था. फॉर एग्जांपल दिस वन, suppose X is a 2-point space in the indiscrete topology, then we don't have any separation of X and hence X is connected. For example, let me denote the 2-point symbol by AB, and we know that with respect to indiscrete topology, the only open sets are phi and X. So the only open set are phi and X. So to show that it is, if we need to prove that it is not connected, then we need to produce at least one open set, which is at least one non-empty proper subset of X, which is open as well as closed. But here we can see that the only open sets are phi and X. This means there is no proper subset which is open. ठीक है ना, ओपन क्लोज दोनों होना चाहिए, तो पहले ओपन ही नहीं मिला प्रॉपर सबसेट, सो दिस स्पेस इज सेल्फ कनेक्टेड. या जैसे कल किसी ने कहा था सिंगलेटन इज नॉट ओपन इन इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी, क्योंकि ओनली ओपन सेट क्या होते हैं, फाई और एक्स, और ये क्लोज्ड भी नहीं होगा. क्लोज्ड इसलिए नहीं होगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट देखोगे तो भी ओपन होना चाहिए. इफ इट इज क्लोज्ड देन इट्स कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी ओपन, बट सिंगलेटन बी इज नॉट मेंबर ऑफ इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी बिकॉज ओनली टू मेंबर्स वी हैव फाई एंड एक्स हियर, हेंस इट इज आल्सो नॉट क्लोज्ड. ठीक है ना. उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था वाई पे सबस्पेस टोपोलॉजी है. सो आइदर यू कैन लुक इट यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ सबस्पेस टोपोलॉजी और लिमिट पॉइंट अप्रोच. तो मुझे उम्मीद है एग्जांपल 2 में दिक्कत नहीं होगा. पिछला अगर लेक्चर अगर आपने रिवाइज कर लिया हो, ठीक है. इनफैक्ट वी कैन से दैट इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू सबस्पेस टोपोलॉजी इंड्यूस्ड फ्रॉम आर, this -1 0, this is a non-empty subset of Y which is open as closed in Y. Why it is open as closed in Y? It is open because one can write it as there exists at least one open subset, say -2 0. This one is open in R, and by tracking its intersection with Y, this set is open in Y. So this one is open. Also look at its complement. Look at its complement. Its complement is also open. Why? Because if you look at its complement in Y, Y is actually your space -1 0 union 0 1. So in this, its complement of this one is this one 0 1, closed at open at 0 and closed at 1. And we can again write it in the format of Y intersection U, because subspace topology के respect में open कब होता है, जब आप Y intersection U format नहीं सको for some U in topology on R. तो आप 0 5 देखो, ये open in R है, and by taking its intersection with Y, this set is open in Y. ठीक है. So you can see that this set is open as well as closed, and it is non-empty and proper subset of Y. This is the reason why this set is not connected, because we have a proper non-empty proper subset of Y which is open as well as closed. ठीक है. इसके बाद आता है एग्जाम्पल 4. एग्जाम्पल 4 को मैंने एक्सप्लेन किया था. Y Q सेट Q ऑफ रेशनल्स आर नॉट कनेक्टेड इन R. Q क्यों नहीं कनेक्टेड है R में? Because the only connected subset of Q are, in fact the only connected subsets of Q are 1 point set. मतलब 2 या 2 से ज्यादा रेशनल्स का कलेक्शन आप जब भी लोगे ना, कोई सेट बनाओ अगर जिसमें 2 रेशनल या 2 से ज्यादा रेशनल है, तो ऑलवेज डिस्कनेक्टेड हो जाएगा. रीजन सेम है. सपोज टू लेट अस टेक अ सेट विद 2 रेशनल्स. मान लो आप Y, सपोज करो Y मिनिमम आप सेट लिया जिसमें 2 रेशनल है, P और Q 2 रेशनल है. तो डेंसिटी थ्योरम से आप जानते हो कि हर एक 2 रेशनल के बीच में कम से कम एक रेशनल मिलेगा. सो लेट मी क्लेम दिस, claim this A by A belonging to rational. Suppose there is a irrational number
in between P and Q. By density theorem, it will always exist. Now you can make a cut from here, minus infinity to A. This one will be open in R, and by taking its intersection, देखो माइनस इंफिनिटी से A में कौन सा रेशनल तो बहुत सारे हैं. दिस माइनस इंफिनिटी A इज ओपन इन R, और Y में जो है आपका P और Q है. तो इनमें से कॉमन कौन सा है? P जो है वो माइनस इंफिनिटी टू Q में भी P है, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा? P आ जाएगा. P है ना. So you can see that basically what I want to show here that singleton P is a proper subset which is not equal to phi. मान लो आपने y equal to pq ले लिया, दो रेशनल का सेट ले लिया, तो इसका हमेशा एक प्रॉपर सबसेट मिल जाएगा नॉट इक्वल टू y which is open as well as closed, which is open as well as closed in open as well as closed in y, है ना. R का सिर्फ Q ही कनेक्टेड नहीं, नॉट कनेक्टेड सबसेट Q ही नहीं है. इनफैक्ट अगर Q का कोई और सबसेट आप लो ना जिसमें दो कम से कम दो रेशनल हो, तो वो भी ऑलवेज क्या हो जाएगा? नॉट कनेक्टेड. तो उसके लिए रीजन ये है क्योंकि जब भी ये why this one is open because one can write it as minus infinity A intersection y. तो ये प्रॉपर सबसेट मिल गया जो ओपन भी है क्लोज्ड भी है. सो बाय दैट लॉजिक दिस सेट इज नॉट कनेक्टेड. उसी तरह का 3 पॉइंट सेट होंगे, जैसे मान लो P है, Q है, R है, तो आप कहीं भी एक इरेशनल ले लो, यहां से कट ये कर दो और एक इधर से कट कर दो, तो ये प्रॉपर सबसेट मिल जाएगा जो ओपन भी है क्लोज्ड भी है. तो ये ओपन तो मैंने शो कर दिया, ओपन शो कर दिया. क्लोज्ड कैसे शो करेंगे? इसका कॉम्प्लीमेंट देख लो. P का कॉम्प्लीमेंट PQ में कितना हो? Q. और एंड वन कैन आल्सो राइट Q एज दिस वन कैन आल्सो राइट Q एज y इंटरसेक्शन A इंफिनिटी टाइप. देखो यहाँ पे ये जो कट किया था ना, यहाँ से ये जो A से इंफिनिटी यहाँ लोगे तो दिस वन इज ओपन इन R, और इसका y के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो सिंगलेटन Q मिल जाएगा. एंड सिंगलेटन Q इज सिंस ऑफ y इंटरसेक्शन A टू इंफिनिटी, तो सबस्पेस टोपोलॉजी में ये भी क्या हो गया? उसका कॉम्प्लीमेंट भी ओपन हो गया. सो दिस इज द रीजन व्हाई सिंगलेटन P इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड. ठीक है. इनफैक्ट द ओनली कनेक्टेड सबसेट्स ऑफ Q आर वन पॉइंट सेट. Q के ओनली कनेक्टेड सबसेट जो होते हैं वन पॉइंट सेट होते हैं, इसीलिए Q को टोटली डिसकनेक्टेड सेट कहते हैं. चलो मैं इसको ये भी लिखा बता देता हूं. देखिए इसके एक्सरसाइज में आप जाओगे ना तो एक क्वेश्चन है, एक डेफिनेशन है, देखो आप इसको देख लेना. ठीक है ना. ये a space is totally disconnected if its only connected subspaces are one point sets. So remember that Q is totally disconnected. Q with its subspace is totally disconnected. Show that if X has the discrete topology, if any set has the discrete topology, then X is totally disconnected. किसी सेट पे अगर discrete topology होगा तो वो भी क्या होगा? Totally disconnected. Does the converse hold? इसके बारे में क्या कहेंगे? X पे अगर discrete topology है तो टोटली डिस्कनेक्टेड का मीन देखो एक तो X discrete topology के रेस्पेक्ट में itself not connected है. Not only this, even if you take any subset of X having more than one element, then it will be again disconnected. In fact, we need to prove that only connected subset of any set X, whether finite or infinite, equivalent with discrete topology is always disconnected. चलें बताएं इस पे. बिल्कुल सेम प्रूफ है जो भी उधर रेशनल में किया था ना P और Q. देखो एक तो ये क्लियर है ना, अगर X पे मैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लूं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, कैन यू नेम मी एटलीस्ट वन प्रॉपर सबसेट ऑफ X व्हिच इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड? कोई एक बता दो. इनफैक्ट एवरी प्रॉपर सबसेट ऑफ X इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड, है कि नहीं? यस सर. आपको दिखना चाहिए ना, डिस्क्रीट टोपोलॉजी पावर सेट होता है, इसमें हर एक सबसेट क्या होता है? ओपन एज वेल एज क्लोज्ड. Can you name me at least one set non-empty proper? बताएं, इतना टाइम क्यों लग रहा है? देखो सिंगलेटन ले लो ना, जैसे हमने सिंगलेटन ले लिया. So this one is non-empty, not equal to X, non-empty, not equal to X. Suppose X has more than two elements, two or more than two elements, then you can first of all show that any set X equivalent with
if its cardinality is greater than equal to 2, then it is always going to be disconnected. Disconnected होगा. Disconnected means we have separation, or you can take any subset where A belongs to X. Let A belongs to X. Take this singleton. This one is open as well as closed. Open as well as closed. तो एक proper subset मिल गया जो open और closed दोनों है. So X with discrete topology is not connected. Disconnected या not connected, जो भी terminology use करो, not connected. ठीक है. लेकिन क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि discrete topology totally disconnected, और totally disconnected का definition क्या कहता है? That only one point sets are connected. Only one point sets are connected. तो अब वहां पे क्वेश्चन अलग हो जाएगा. अब सपोज करो y में सबसेट लूं x का, एंड सपोज y हैज टू एलिमेंट्स, से p एंड q. p q चलो हटा दो, a और b ले लो, a b, क्योंकि p q से वो पीछे रेशनल के लिए यूज किया था. तो ऑन y वी हैव सब स्पेस टोपोलॉजी. y पे सब स्पेस टोपोलॉजी है. सो कैन यू प्रूव दैट? तो y x पे क्या है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी. x पे डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी. और y पे क्या है? सब स्पेस टोपोलॉजी, इंड्यूस्ड फ्रॉम डिस्क्रीट टोपोलॉजी. तो ये बताओ सिंगलेटन है इसका प्रॉपर सबसेट है कि नहीं? y का जो ओपन एज वेल एज क्लोज्ड है. मैं y इक्वल टू अगर a भी लिख गया तो ये देखो नॉट इक्वल टू y, एंड दिस वन इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब स्पेस टोपोलॉजी ऑन y. कैसे प्रूफ करेंगे? ये बताओ x में भी तो सिंगलेटन a है. एक्चुअल y सब स्पेस x का, तो जो y में मेंबर होंगे वो x में भी होंगे. तो यहाँ सिंगलेटन है तो यहाँ भी ओपन है, और उस ओपन सेट का अगर y में इंटरसेक्शन लो तो ये सिंगलेटन y में भी ओपन होगा. y में ओपन मींस विथ रिस्पेक्ट टू सब स्पेस टोपोलॉजी ऑन y. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो द सिंगलेटन a इज ओपन, और y क्लोज्ड भी है. सॉरी, सिंगलेटन a क्लोज्ड भी है यहाँ पे, क्योंकि ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हर एक सबसेट ओपन भी होता है, क्लोज्ड भी, और उसका y के साथ इंटरसेक्शन लिया तो ये क्लोज्ड भी हो गया. सो दिस इज द रीजन व्हाई whenever we have two or more than two elements, it will always have a proper non-empty proper subset which is open as well as closed. This implies not connected. Not connected. और जब वन पॉइंट सेट लोगे तो बेसिकली वो इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी हो जाएगा. जैसे मान लो y आपने लिया, सिर्फ एक एलिमेंट ले लो, सिंबल को चेंज कर दो, तो मान लो मैंने d ले लिया y, तो d लोगे तो इस पे जो टोपोलॉजी बनेगी, y के साथ इंटरसेक्शन लोगे, x में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ओपन सेट है यहाँ टोपोलॉजी को, उसका y के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो एक्चुअल में जो यहाँ ओपन सेट आएगा वो सिर्फ 5 और सिंगलेटन d आएगा. तो 5 इसका इम्प्रॉपर है, d भी इम्प्रॉपर है. I mean, you don't have any proper subset which is open as well as closed. So this implies that every one point set is connected where d belongs to x. So every one point set is connected. तो एक one point set तो connected हो जाएगा, लेकिन जैसे ही दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलेंगे तो हमेशा आपको एक प्रॉपर सबसेट मिल जाएगा जो क्या होगा? डिस्कनेक्टेड. दिस इज द रीजन व्हाई any space x with the discrete topology is the totally disconnected. This totally disconnected means only singletons are, only one point subsets are connected. Now does the converse hold? क्या इसका ट्रू है, कन्वर्स है? I mean whenever x is totally disconnected, क्या उस पे टोपोलॉजी डिस्क्रीट होगी? कन्वर्स का यहाँ ये सेंस है कि अगर मान लो कोई स्पेस है, कोई टोपोलॉजिकल स्पेस, वो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है टोटली डिस्कनेक्टेड मींस एवरी वन पॉइंट सेट इज कनेक्टेड. The only one point set is connected. So can you say that x has always discrete topology? So answer is no. क्यों? क्योंकि q देख लो, q पे हमने कहा डिस्क्रीट टोपोलॉजी लिया था. q पे याद है पिछले लेक्चर प्रूफ किया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे सब स्पेस टोपोलॉजी जो r से आता वो तो डिस्क्रीट होता है, या जो z पे आता वो डिस्क्रीट होता है, लेकिन q पे डिस्क्रीट नहीं होता. हर एक सिंगलेटन इसमें ओपन नहीं होता. ठीक है? तो या इसका और भी एग्जांपल है, आप एग्जांपल में ये ले लो, R with lower limit topology या Q ले लो. ये सब एग्जांपल काउंटर एग्जांपल, ये भी टोटली डिस्कनेक्टेड है, बट द टोपोलॉजी और देम आर डिफरेंट फ्रॉम द डिस्क्रीट टोपोलॉजी. टोपोलॉजी इन पर क्यों? अच्छा ये बताओ, R with lower limit topology क्यों कनेक्टेड है? इनफैक्ट ये है, इज द स्पेस RL कनेक्टेड? जस्टिफाई योर आंसर. 7th का एक्सप्लेनेशन. इनफैक्ट माय क्लेम इज दिस इज टोटली डिस्कनेक्टेड. RL is also totally disconnected. लेकिन पहले कनेक्टेड प्रूफ करो, फिर बाद में देखो. कनेक्टेड प्रूफ करना के लिए आप एक दिखा दो इसका एक प्रॉपर सबसेट है, एटलीस्ट एक इसका प्रॉपर सबसेट मिलेगा which is non empty, open as well as closed.
और टोटली डिस्कनेक्टेड के लिए आपको ये दिखाना कि एवरी सबसेट हैविंग two or more than two element is always disconnected. In fact, the only one point set is one point set is connected. दोनों अलग है, कनेक्टेड के लिए अलग दिखाएंगे, टोटली डिस्कनेक्टेड के लिए उसका ये दिखाना होगा। तो उसके आप जितने भी सबसेट लो जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट है वो टोटली डिस्कनेक्टेड होगा। तो पहले आरएल को कनेक्टेड के बारे में क्या कहेंगे? आंसर इज नो। क्यों? कैन यू थिंक ऑफ अ प्रॉपर सबसेट व्हिच इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड? अच्छा, लोअर लिमिट आरएल पे लोअर लिमिट टोपोलॉजी में बेसिस एलिमेंट किस तरह के होते थे? क्लोज है भी। किसी एक बेसिस एलिमेंट को जरा ऑब्जर्व करो, बेसिस है तो ये बाय डेफिनेशन ओपन हो गया है ना। वैसे भी ओपन प्रूफ भी करना हो तो ये ए ले लिया, ये बी ले लिया और इससे पहले कट सी कर दो, तो ये बेसिस एलिमेंट ऑलवेज इसके अंदर कंटेन करेगा, ठीक है ना। कोई भी यहाँ पे ए बी से कोई भी आप एक्स उठाओगे, याद है वो डेफिनेशन बेसिस वाला, कोई भी एक्स बिलोंगिंग टू ए बी लोगे तो हमेशा इसके अंदर एक कट मिल जाएगा, चाहे एक्स इक्वल टू ए बी इनफेक्ट है तो ए से सी मिल जाएगा जो ए बी के अंदर कंटेंट हो। यहाँ लोगे तो यहीं से कट बना दो, ये हमेशा हो जाएगा जो कंटेंट। तो इसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, हेंस दिस वन इज अ बेसिस ओपन सेट। तो ये ओपन तो है, और देखो नॉन एम्प्टी भी है, नॉन एम्प्टी भी है और प्रॉपर भी है, ठीक है। इज दिस क्लोज्ड आल्सो? ओपन तो मैंने प्रूफ कर दिया। इफ इट इज क्लोज्ड देन व्हाट अबाउट इट्स कॉम्प्लीमेंट? इसका कॉम्प्लीमेंट आर में क्या होगा? माइनस इंफिनिटी टू ए पे ओपन यूनियन क्लोज बी इंफिनिटी। बी पे क्लोज इंफिनिटी। देखो इसको तो लिख सकते हो, ये जो पार्ट है ना बी टू इंफिनिटी, आई कैन राइट दिस पार्ट बी टू इंफिनिटी एज, I can write this part b to infinity as union of b to n, where obviously n is greater than b, n is greater than b, and यहाँ open कर दो और and n belonging to n, है ना, n is greater than b। तो ये देखो ये बेसिस मेंबर है, बेसिस मेंबर्स ऑफ आर ओपन एंड आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। आगे समझ में, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो ये ओपन हो गया। व्हाट अबाउट दिस? How can I write minus infinity a as how? If this is open, then it should be generated by the elements of this type. Can you write it? पीछे पढ़ा चुका हूँ, पीछे के लेक्चर में, वहां पे इतना टाइम इसी वक्त से के लिए दिया था। Yeah, minus n to a. Okay. See, this one is a basis member. Basis members are open and arbitrary union of open set is open where n belongs to n कर दो। So this one is open, this one is open, union of open set is open, in fact arbitrary union of open set is open, so AB complement is open, this means AB is closed, तो यहाँ से closed भी proof हो गया। So I have a proper subset which is open as well as closed, hence RL is not connected, इसलिए RL connected नहीं होगा, RL connected नहीं होगा। तो RL कनेक्ट, लेकिन क्वेश्चन अब यहाँ पे मैंने ये कहा कि नॉट ओनली दिस, RL इज टोटली डिस्कनेक्टेड, लोअर लिमिट R विथ लोअर लिमिट टोपोलॉजी इज टोटली डिस्कनेक्टेड, टेक इट एज अ होम असाइनमेंट, सेम टेक्निक है, RL इज टोटली डिस्कनेक्टेड, सॉल्व करके बिल्कुल जो लॉजिक बताया है यहाँ पे पैरेलल है। टेक RL इज टोटली डिस्कनेक्टेड, कैसे प्रूफ करोगे? टेक एनी सबसेट Y हैविंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स एंड शो दैट with respect to the topology induced from lower limit topology on R, every 2 points, 2 or more than 2 points subsets of RL is disconnected. In fact, only singletons are connected. ठीक है ना, तो दो क्वेश्चन मैंने करा दिया, Q को आपको टोटली डिस्कनेक्टेड दिखा दिया, X विथ डिस्क्रीट टोपोलॉजी दिखा दिया। देखो यहाँ अगर X इनफैक्ट अगर X इक्वल टू 1 पॉइंट सेट है तो वो तो ट्रिवियली हो गया। अगर मान लो X में एक से ज्यादा एलिमेंट है तो उसके जो सबसेट होंगे हो सकता है तब उसके जब भी ऐसे सबसेट मिले दो जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हो, तो बाय सेम लॉजिक यू कैन शो दैट इट इज टोटली डिस्कनेक्टेड, है ना। सो आई मीन डिस्कनेक्टेड तो सिर्फ 1 पॉइंट सेट कनेक्टेड होगा। तो यहाँ हिंट दे दिया, इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में, या ये जो आप नेट जारी लेते हो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको हिंट दे दिया, खुद से रिवाइज कर लेंगे। इतना हिंट बहुत होता है, जब वर्कआउट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आप लोग खुद से करना, अच्छा क्वेश्चन है। आते हैं पीछे जो क्वेश्चन था, पहले वहां चलते हैं फिर उसके बाद देखेंगे। हाँ, तो हम लोगों ने ये पार्ट कर लिया। नाउ क्वेश्चन 5,
रीड कर एग्जांपल 5। देखो क्या प्रूफ करना है, कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ द प्लेन R2, है ना, ये सबसेट है। यहाँ एक्स क्रॉस वाइज बुक में ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई को लिखते हैं, जो आप लोग यूजुअली ये नोटेशन यूज करते हो, यहाँ पे मूंगप्रेस में ये लिखा हुआ है such that y equal to 0, I mean collection of all those xy belonging to R2 such that y is 0. Basically this one is your x axis, this one is your x axis, union all those points lying on all those points from R2 such that x is greater than 0 and y equal to 1 by x, I mean ये वाला portion, ये वाला portion। तो बेसिकली आपका ये जो सेट x है वो ये कर्व और ये लाइन का यूनियन है। To show that x is not connected, we need to show that x is not connected. Indeed, the two identical sets form a separation of x. आपको ये दिखाना है ये सेपरेशन फॉर्म करेगा because neither contains a limit point of। तो आपका दो है, देखो जब भी मैंने बताया कि सभी सबसेट दे रखा हो तो उस पर सबस्पेस टोपोलॉजी होगा, सबस्पेस टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट में अगर आपको दिखाना कनेक्टेड नहीं है, so think of at least one proper subset with respect to subspace topology on x which is non-empty and proper as well as open and closed। तो या तो वो कर दो या लिमिट पॉइंट अप्रोच करो, तो इसको दोनों से सॉल्व करते हैं। अगर आपने पीछे बेसिक रिवाइज कर लिया तो कोई यहाँ दिक्कत नहीं आने वाली, मैं हिंट दे रहा हूँ, इस पर दोबारा लेक्चर देखें, वर्कआउट करें, इससे बाहर क्वेश्चन किसी कंडीशन में नहीं आते। अब प्रूफ तो मुझे बेसिकली सेट थ्योरी यूज करके, सेट थ्योरी पे जिसका अच्छा कमांड है उसको प्रूफ सब समझ में आ जाएगा, लेकिन अब क्योंकि लेक्चर कम है, 4 अप्रैल तक कंप्लीट करना है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, तो मैं कुछ एक दो प्रूफ करा दूंगा, आपको सेट थ्योरी का आइडिया दे दूंगा। प्रूफ वैसे लास्ट ईयर के लेक्चर रिकॉर्डेड मैंने कराया है, ठीक है ना। तो पहले एग्जांपल समझ ले ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए, और उसके बाद वक्त मिला अगर तो मैं जिस हिसाब से होगा तो उस हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा करा दूंगा। लेकिन ये सब की पॉइंट्स अगर ये सब आपको एग्जांपल समझ में आ गया ना तो आप मतलब इतना हिंट होता है कि आप खुद से भी पढ़ सकते हो। बाकी देखो किसी टॉपिक को चाहे मैं 20 लेक्चर में कवर कराऊं या 4 लेक्चर में कवर कराऊं, जो की कॉन्सेप्ट 4 लेक्चर बता दी जाते हैं, उसके बाद वो आपके ऊपर आप कितना वर्कआउट करते हो। अब सेमेस्टर सिस्टम में एक ड्रॉबैक है, लिमिटेड टाइम होता है, तो कोई भी टीचर रिस्ट्रिक्टेड होता है, अगर नहीं करेगा तो एक ही टॉपिक में अच्छा वर्क लग जाएगा। और स्टार्टिंग के लेक्चर हम लोग इसकी पिछले नहीं कर सकते क्योंकि वहां पूरा बेसिक इन्वॉल्व है। अब देखो क्या हुआ, वो बेसिक जिसको ओपन सेट क्लोज सेट मैंने सब करा रखा है, जिसको क्लियर उसको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, अदरवाइज आप परेशान हो जाओगे कि ओपन है क्लोज है कि नहीं। जैसे इस ऊपर भी लोअर लिमिट टोपोलॉजी वाला क्वेश्चन कराया था। So consider the following subsets of the plane R2, x y equal to 0 union x cross y, x is greater than 0 and y equal to 1 by x. Then x is not connected. Indeed, the two indicated sets form a separation of x because neither contains। तो देखो एक तो मैं ये कह रहा था इनमें से कोई एक सेट, जैसे इसी को A मान लो, आप इस वाले को A मान लो और इस वाले को B मान लो, तो आप दिखा सकते हो बेसिकली ए और बी ही इसका सेपरेशन बना रहे हैं, या आप सिर्फ ए को ये शो कर दो कि दिस वन इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर, तो है ये ऑलरेडी सेट ए, इसी को शो कर दो कि ओपन एज वेल एज क्लोज्ड भी है, किसी एक को शो कर दो ओपन एज वेल एज क्लोज्ड है, तो क्या मिल जाएगा, डिस्कनेक्शन, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है कैसे आप इसको डिस्कनेक्शन दिखाओगे। दो एलिमेंट्स लेके इसको हम एक प्रॉपर सबसेट बनाएंगे और इसका ओपन भी दिखा देंगे और क्लोज भी दिखा देंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो या तो आप वो यूज कर लो, जैसे आपको बताया था ना किसी सेट को शो करना है ओपन है कि नहीं, सो थिंक ऑफ अ मैप अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन हुज सेट थ्योरेटिक इनवर्स इज दिस वन। एक तो वो तरीका है, ठीक है ना, कि किसी अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन सेट थ्योरेटिक इनवर्स ऑफ ओपन सेट इज ओपन एंड क्लोज सेट इज क्लोज, या तो वो यूज कर लो। और ऑन दिस एक्स यू कैन शो दिस वन एज इंटरसेक्शन ऑफ सम ओपन सेट्स इन R2 विद दिस एक्स, तो भी ओपन हो गया। और इसके कॉम्प्लीमेंट को क्लोज दिखाने के लिए ऐसे इसको क्लोज दिखाने के लिए कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा दो, तो ये दो है दोनों। अब ये पता चलो किसी एक को उठा लो, किसको लेना, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 बेसिकली आपका एक्स एक्सिस हो गया ना, ये y इक्वल टू 0 हो गया, इस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट,
y इक्वल टू 1/x, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, लेकिन यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, मतलब आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन रिटेन करना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हटा दो। तो ये देखो, अगर आप y इक्वल टू 0 को भी प्रूव करना चाहो ना, ठीक है, किसी एक को ले लो, इसको भी उठा लो, y इक्वल टू 1/x। इस पे लाई करने वाले जो पॉइंट है, बेसिकली मैं ये सेट b को कह रहा हूँ, b इज नॉट एम्प्टी, नॉट इक्वल टू x। x यहाँ पे सबसेट है, R2 आपका फुल स्पेस है, और नोटेशन x जो लिया है सबसेट के लिए लिया है, तो x पे कौन सी टोपोलॉजी होगी? सब स्पेस टोपोलॉजी। और आपका R2 पे कौन सा स्टैंडर्ड? याद रखें, यहाँ पे ये जो x है ये R2 का सबसेट है, x इस सेट की बात कर रहे हैं, तो इस पे सब स्पेस टोपोलॉजी है। बार बार मुझे कहना ना पड़े कि आप अंडरस्टूड है, x पे सब स्पेस टोपोलॉजी है ना। सब स्पेस टोपोलॉजी कहाँ से इंड्यूस्ड हो रही है? इंड्यूस्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन R2। सब स्पेस टोपोलॉजी is not equal to phi, not equal to x। ठीक है, तो मुझे इसको दिखाना है कि नॉन एम्प्टी तो है, ये तो ऑलरेडी सेट जो b आपने लिया, b जो लिया, कलेक्शन ऑफ ऑल x y such that x is greater than 0 and y equal to 1/x। एक तो ये आपने ले लिया, तो ये जो y ये पोर्शन लिया ना, तो इसका इंटरसेक्शन बेसिकली है क्या ना, ये वाला पोर्शन है आपका, इस पे लाई करने वाले पॉइंट्स हैं। तो ये बताओ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ओपन है कि नहीं R2 में? अगर मैं कहूं कि मैं ये ले लूं, मैंने u को ये ले लिया, कलेक्शन ऑफ ऑल x y such that x is greater than 0, y is greater than 0, this one is open in R2। ये R2 में ओपन है कि नहीं? यस सर। आई मीन ये पोर्शन पीछे भी करा चुका स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में, ये क्या होता है? ये ओपन सेट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, बाउंड्री पॉइंट छोड़कर x ग्रेटर देन 0 लिखा, y ग्रेटर देन 0, और इसके साथ अगर आप इस सेट का इंटरसेक्शन लोगे, आई मीन इसको अगर रेस्ट्रिक्ट करोगे ना, इसको रेस्ट्रिक्ट करोगे x पे आप रेस्ट्रिक्ट करोगे, x में तो ये वाला भी है और ये भी है, लेकिन जब फर्स्ट क्वाड्रेंट से इंटरसेक्शन लोगे तो सिर्फ ये आएगा, ये पोर्शन आएगा। ये क्लियर हो गया? I mean, I can write this b as u intersection y intersection u। ये बताओ, y intersection u ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला पोर्शन, और उसका b के साथ b में ये एक x एक्सिस है और ये है, और y जो आपका है ये u सिर्फ इतना है, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आएगा ना पोर्शन। आई मीन दैट इज u, वन कैन राइट b। तो b x y, सॉरी यहाँ y लिखा है, ये x लिख देना, क्योंकि एक्चुअली इन्होंने सबसेट को यहाँ x से डिनोट किया है, तो कंफ्यूजन ना हो। b इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन, हेंस b इज ओपन। b ओपन हो गया कि नहीं? b पे सब स्पेस टोपोलॉजी, तो मैंने एक u कंस्ट्रक्ट कर दिया, सो दिस वन इज ओपन, x इंटरसेक्शन u। वो ले लो, या ये भी पूरा ओपन होता है R2 में, तो ये पूरा भी ओपन होता है ना, इसके साथ इंटरसेक्शन ले लो, लेकिन प्रॉब्लम होगा ना उसमें, फिर ये पोर्शन भी आएगा। मैं चाह रहा था सिर्फ इसको दिखाना, इसलिए आप फर्स्ट वाला लो। हाँ, ये ले लो फर्स्ट क्वाड्रेंट, so this one is open in R2। और कोई तरीका इसको ओपन दिखाने का? वैसे भी ओपन दिखाने की, R2 में ओपन बॉल्स क्या होते हैं? ओपन रेक्टेंगल्स या ओपन डिस्क, यही तो होते हैं स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में। ओपन बॉल्स, सॉरी मैं कह रहा हूँ, ओपन बेसिस मेंबर्स क्या होते हैं? R2 के बेसिस मेंबर्स क्या होते हैं? R2 मींस R क्रॉस R होता है ना, R2 मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट। R के क्या होते हैं? ओपन इंटरवल AB टाइप के होते हैं, और यहाँ CD टाइप का ले लो, तो इस तरह का होगा ना। ये मान लो ये A से B है x एक्सिस पे, और इधर कहीं C से D होगा y पे, तो ये इसको आगे बढ़ाओ तो इसको आगे बढ़ाओ तो ये जो होगा ओपन रेक्टेंगल्स या ओपन सर्कल्स, इस तरह के ये ओपन डिस्क, ये R2 के क्या होते हैं? बेसिस होते हैं, और एंड दे आर गोइंग टू जनरेट सेम टोपोलॉजी। पीछे आपको बताया भी था,
बेसिस के कंटेनमेंट के टर्म में, ये सब सेम टू इनके यूनियन से ये जनरेट हो जाएगा। हाँ, तो मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा था बेसिकली, स्किप कर गया, कुछ बताना चाहता पॉइंट। हाँ बताएं क्या कह रहे थे। मतलब मैंने यू को ओपन प्रूफ कर दिया, सॉरी बी को मैंने ओपन प्रूफ कर दिया। अब बी को क्लोज भी आप प्रूफ कर सकते हो। बी को क्लोज क्यों प्रूफ कर सकते हो? क्योंकि बी का कॉम्प्लीमेंट ये होगा ए, और ए अगर ओपन आप प्रूफ कर दो, ए ओपन, तो क्या हो जाएगा, ये ए को ओपन प्रूफ करने के लिए कैसे प्रूफ, इसको भी सम ए इंटरसेक्शन यू टाइप का लिख सकते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन सम वी वेयर वी इज ओपन इन R2। इसको सोचो, वी इज ओपन इन R2, तो देखो डायग्राम से दिख रहा है कि आप ए को, ये है एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल 0, ये आपका ए है। मैं कह रहा हूं ए को मैं लिख सकता हूं एक्स इंटरसेक्शन सम यू, यू के जगह कुछ और ले लो, U2 ले लो, क्योंकि यू हमने यहाँ पे यूज, वेयर U2 इज ओपन इन R। टेल मी एटलीस्ट वन U2 ओपन इन R2। R2 में एक ओपन सेट बताओ, लेट मी नेम इट एज U2 whose intersection with X is A। अच्छा हाँ, मैं वो दिखाना चाह रहा था कि ये देखो, ये वैसे भी ना, ये U जो है ये ओपन है R2 में। क्यों ओपन है R2 में, उस पॉइंट को मैं मिस कर गया था। क्योंकि आपने जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया, तो आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट के अराउंड ये जो ओपन डिस्क होगा ना, ये ऑलरेडी इसके अंदर कंटेंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट, एक वो भी तरीका प्रूव कर सकते हो। या यही दिखा दो कि ये अगर ओपन सेट है, तो याद है ना, इफ U इज ओपन, देखो एक, हाँ ये भी तरीका सबसे बल्कि और आसान हो जाएगा। यू को आपने क्या लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यू आपने ये लिया ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये U क्यों ओपन है? अगर U ओपन है तो यहां से आप कोई भी पॉइंट ले लो, एक्स वाई बिलोंगिंग टू U, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंगिंग टू U, आपको दिखाना है कम से कम एक बेसिस मेंबर मिले, बेसिस मेंबर जो U में कंटेंट हो। तो आप इसके अराउंड कोई भी अगर ये ओपन डिस्क लोगे, तो हमेशा U में कंटेंट होगा। हर पॉइंट के अराउंड आप एक ओपन डिस्क ले सकते हो, चाहे ये कितना भी इसके क्लोज हो, हमेशा वो एक ओपन डिस्क जो इसके अंदर, इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट, सो दिस इज ओपन। तो ये आप इस तरह भी दिखा सकते हो बेसिस के डेफिनेशन यूज करके, या आप इसको किसी कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर इसको आप एज अ इमेज भी सोच सकते हो, सेट थ्योरेटिक इनवर्स इमेज ऑफ सम ओपन सेट, तो भी ओपन हो जाएगा। तो डिफरेंट अप्रोचेस हैं, ठीक है, डाउट तो नहीं किसी को? तो R2 पे जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है ना, उसके बेसिस मेंबर क्या होते हैं? उसके बेसिस मेंबर कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन रेक्टेंगल्स भी R2 पे स्टैंडर्ड टोपोलॉजी जनरेट करता है। कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन डिस्क, ये भी क्या जनरेट करता है? इसलिए मैं कहीं ओपन डिस्क लिख देता हूँ, कहीं ओपन रेक्टेंगल्स। और इन ओपन रेक्टेंगल्स का ना, इन ओपन रेक्टेंगल्स का अगर यूनियन आप ले लो, तो ये आ जाएगा, ये आई मीन दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कलेक्शन ऑफ ओपन रेक्टेंगल्स। इसको रिस्ट्रिक्ट कर दो यहाँ से यहाँ तक एक साइड को, और एक को इधर यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर दो, तो वो भी एक तरीका है, इस तरह भी देख सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। इसी तरह आप इसके कॉम्प्लीमेंट को क्लोज दिखा दो, तो ये एक प्रॉपर सबसेट हो जाएगा जो ओपन एज वेल एज क्लोज्ड है। दूसरा तरीका ये है कि आप ये दिखा दो, इसका सेपरेशन मिल जाएगा। तो सेपरेशन के लिए आपको ये दिखाना होगा कि जो इस बुक में लिखा हुआ है, तो इसको ए, ये इसको आप ए एज्यूम कर लो और इसको बी, और आप ये दिखा दो कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ये भी एम्प्टी आ रहा है, और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी, ये भी एम्प्टी आ रहा है। अगर ऐसा हो गया तो ए बी के इसका क्या कम करेंगे, एज अ सेपरेशन, एज अ डिस्कनेक्शन मिल गया, तो इस सेट आई मीन क्या कनेक्टेड नहीं होगा। तो अब ये बताओ क्लोजर कैसे निकालते हैं? इनफैक्ट ए का क्लोजर है ना, इसको मैंने अगर ए कह दिया, तो ए का क्लोजर ए ही आएगा, ए का क्लोजर ए आएगा और बी का क्लोजर बी आएगा। और देखो दोनों के ए क्लोजर, बी का क्लोजर क्योंकि बी ही है, और ए बी में कुछ भी कॉमन नहीं, तो एम्प्टी हो गया, और ए का क्लोजर ए ही आएगा, तो ए और बी में भी कुछ कॉमन नहीं, सो दे आर गोइंग टू फॉर्म सेपरेशन। अब क्यों ए का क्लोजर ए होगा? बेसिकली ए इज योर क्लोज सेट। क्लोज सेट में अगर आप क्लोज सेट की डेफिनेशन याद है, तो ए है बेसिकली योर एक्स एक्सिस, y इक्वल 0 मींस एक्स एक्सिस। तो इस पे आप कोई भी ओपन बॉल, मैं बार बार बॉल कर रहा हूँ, बेसिस मेंबर को आप इस पे कोई भी बेसिस मेंबर लो, जैसे मान लो ओपन डिस्क ले लिया, इसके अराउंड कोई ओपन डिस्क ले लिया, तो इसका इंटरसेक्शन देखो इस सेट के साथ, ए के साथ नॉन एम्प्टी है अदर देन दिस पॉइंट, तो हर पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा अदर देन दिस पॉइंट itself, so every point is its limit point. Now if there is point outside it,
So one can always have this open disk whose intersection with this is, there exists at least one open set whose intersection with this is empty. Hence points lying outside is not its limit point. ठीक है, इसी वजह से इस पे लाई करने वाले हर पॉइंट क्या होते हैं, लिमिट पॉइंट. उसी तरह जब आप यहाँ लोगे, तो यहाँ पे जब आप ओपन डिस्क बनाओगे ना और उसको इस सेट पे रेस्ट्रिक्ट करोगे, तो ये तभी इंटरसेक्शन क्या होगा. हालांकि मुझे एक्स में देखना है, एक्स में ये जो ओपन डिस्क है ना, इसका इंटरसेक्शन इस एक्स के साथ ले लो, तो वो ओपन डिस्क होगा एक्स में, तो ये आ जाएगा. लेकिन ये इसमें इस पॉइंट को छोड़ भी दे तो यहाँ पे एलिमेंट कॉमन मिल जाएंगे. सो इंटरसेक्शन इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी. हेंस एवरी पॉइंट ऑफ दिस बी इज अ लिमिट पॉइंट. तो जब तो सेट अगर क्लोज होता है तो उस केस में उसका क्लोजर क्या होता है, अगर कोई सेट क्लोज हो तो उसका क्लोजर खुद है. तो ये दोनों मैंने करा दिया. ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट व्यू आपको दिखना चाहिए और फिर बाद में से कैसे लिखें. तो लिमिट पॉइंट अप्रोच से भी बता दिया, जो ये डेफिनेशन यहाँ पे था, ये था ना, इफ y is a subspace of x, a separation of y is a pair of disjoint non-empty sets A and B whose union is y.